Assalamualaikum student, I am your maths teacher. Today your first lecture. Now we start forward counting 501 to 700. Now first you show the heading forward counting in your classwork copy and write down forward counting 501 to 700. After forward counting you show the heading backward counting 101 and write down the backward counting 101. After backward counting, you show the heading of table and write down the table of 6, 7. Assalamualaikum student, I am your maths teacher. This is your grade 3 maths book. Now we start lecture number 2 according to syllabus outline. Review and assess. In this topic, we revise previous class work. Now see the exercise 1. Write the place value of the highlighted numbers. यहाँ हमें कह रहे हैं जो वैल्यू हाईलाइट की गई हैं उनकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है. The first question is 399. First digit is called unit, second digit is called tens, and third digit is called hundred. The highlight number is 9. The value of 9 is unit place. Now see the question number 2. Value is 32. Now first digit ones and second digit tens. The value of 3 is 10 place. Now see the question number 3. 309. The highlight digit is 0. The value of 0 is 10 place. Now see the question number 4. The value is 213. Highlight digit is 2. The value of 2 is 100 place. Now see the question number 5. The value is 22. Highlight digit 2. The value of 2 is unit place. Now see the question number 6. Value is 94. Highlight digit 9. The value of 9 is 10 place. Assalamu alaikum grade 3. I am your maths teacher. Now we start lecture number 3. Now see the exercise number 2. Write the numbers as instructed. इसमें हमें कह रहे हैं ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है नंबर्स के साथ. Now see the blank 1. 2 numbers after 34. 34 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है? 34 के बाद 35 आता है और फिर उसके बाद 36. Now see the blanks number 2. The numbers between 234 and 236. 234 और 236 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 235. Now see the blank 3. 519. इसको नंबर्स में लिखना है 519. Now see the blank 4. 5 less than 45. 5 नंबर पीछे 45 से 5 नंबर पहले कौन सा नंबर आता है? 40. Now see the blank 5. 176. इसको इनवर्ट में दिया हुआ है, नंबर्स में लिखना है 176. Now see the blanks number 6. 904. इसको भी नंबर में लिखना है 904. उसके बाद see the blanks number 7. सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, यानी कि शुरू के 6 नंबर्स को हमें प्लस करना है. जब हम 6 नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21. नाउ सी द ब्लैंक्स नंबर 8. द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, हमें सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर लिखना है, वो होता है 100. नाउ सी द ब्लैंक 9. 1 लेस देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर is 998. Now see the blanks number 10. 10 more than the smallest 2 digit number. Smallest 10 more than the smallest 2 digit number is 20. Now see the blank number 11. 508. इसको नंबर्स में लिखना है 508. Now see the blank 12. 976. इसको भी नंबर्स में लिखना है 976. नाउ सी द ब्लैंक 13. 710. इसको भी नंबर्स में लिखना है 710. नाउ कंप्लीट द एक्सरसाइज नंबर. अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 3. आई एम योर मैथ्स टीचर. नाउ टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 4. टॉपिक 1 रिव्यू एंड एसेस. नाउ सी द एक्सरसाइज 3. Question: complete the following numbers
पैटर्न, यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके साथ पैटर्न दिए हुए हैं, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नाउ सी द ब्लैंक वन, 261, नाउ नेक्स्ट डिजिट 262, थर्ड डिजिट 263। अब आगे हमें ब्लैंक कंप्लीट करनी है इसी सीक्वेंस से, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 एंड लास्ट उन्होंने वैल्यू लिख कर दी थी हमें 271। नाउ सी द ब्लैंक 2, वैल्यू दी हुई है फर्स्ट 299 एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 399, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लैंक्स 100 की वैल्यूज प्लस करके कंप्लीट करनी है। 299, 100 प्लस किया 399, 300 में 100 प्लस किया 499, 499 में 100 प्लस किया 599, नेक्स्ट 599 में 100 प्लस किए 699, 699 में 100 प्लस किए 799, 799 में 100 प्लस किए 899 और लास्ट में उन्होंने हमें वैल्यू लिख कर दी थी 999। नाउ दिस ब्लैंक इज कंप्लीट। नाउ सी द ब्लैंक्स 3, 7, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज 17, यानी कि यहाँ पर हमें पैटर्न जो दिया है वो दिया गया है, हमें 10 प्लस कर करके आगे वैल्यूज लिखनी है और ब्लैंक कंप्लीट करनी है। 7, 17, 17 में 10 प्लस किए 27, 27 में 10 प्लस किए 37, 37 में 10 प्लस किए 47, 47 में 10 प्लस किए 57, 57 में 10 प्लस किए 67, 67 में 10 प्लस किए 77, 77 में 10 प्लस किए 87, 87 में 10 प्लस किए 97, 97 में 10 प्लस किए 107 और लास्ट में उन्होंने हमें वैल्यू दी थी 117। नाउ कंप्लीट दिस ब्लैंक। नाउ सी द ब्लैंक 4, फर्स्ट वैल्यू इज 2, सेकेंड वैल्यू इज 22, यानी कि यहाँ पर हमें पैटर्न जो दिया गया है वो ये दिया है, हमें 20 प्लस करके ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट 2, सेकेंड वैल्यू 22, 22 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 42, 42 में फिर 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 62, 62 में 20 प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 82 और लास्ट में उन्होंने हमें वैल्यू दी थी 102। नाउ दिस ब्लैंक इज कंप्लीट। नाउ सी द ब्लैंक 5, फर्स्ट वैल्यू इज 122, नेक्स्ट वैल्यू इज 132, यानी कि यहाँ हमें पैटर्न दिया गया है 10 प्लस करके हमने वैल्यूज आगे लिखनी है। 132 में 10 प्लस किया 142, 142 में 10 प्लस करेंगे 152, 152 में 10 प्लस करेंगे 162, 162 में 10 प्लस करेंगे 172, 172 में 10 प्लस करेंगे 182, 182 में 10 प्लस करेंगे 192 और लास्ट वैल्यू उन्होंने हमें दी है 202। नाउ कंप्लीट दिस ब्लैंक। नाउ कंप्लीट the exercise in book grade 3. I am your maths teacher. Now today we solve exercise 5, topic 1, review and assess. Add the following then write the answer in word. यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि हमें वैल्यूज़ को ऐड करना है और आंसर को इन वर्ड में लिखना है। Now see the question number 1, 213 plus 34। बिग वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे 213 और उसके नीचे स्मॉल वैल्यू लिखेंगे 34। अब इनको प्लस करेंगे, 4 में 3 प्लस करें 7, 3 में 1 प्लस किए 4 और 2 के नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो 2 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। नाउ आंसर इन वर्ड 247, राइट डाउन 247। नाउ सी द क्वेश्चन 2, 506 प्लस 111। इनको प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, ऊपर लिखा 506, उसके नीचे लिखा 111। 6 में 1 प्लस किया 7, 1 में 0 प्लस किया 1, 5 में 1 प्लस किया 6,
हमारे पास आंसर आ गया 617। इसको हमने इनवर्ड में लिखा 617। नाउ सी द क्वेश्चन 3, 89 प्लस 600। 600 बड़ा है, 600 को ऊपर लिखा हमने, उसके नीचे हमने वैल्यू लिखी 89। अब इन्हें प्लस करेंगे, 9 में 0 प्लस किया 9, 8 में 0 प्लस करेंगे तो वैल्यू रहेगी 8, और 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो 6 एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। हमारा आंसर आया है 689। नाउ राइट इन वर्ड 600 and grade 3. I am your maths teacher. Now today we solve exercise 6 topic 1 review and essays. Solve the following and write the answer in word. यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए उन्हें हमें सॉल्व करना है और आंसर हमें इन वर्ड में लिखना है। Now see the question 1, 78 minus 66। हमेशा सब्सट्रैक्शन में बिग वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने ऊपर 78 लिखा है, 78 के नीचे हमने सेकंड वैल्यू को लिखना है 66। 8 में से 6 माइनस किए 2, 7 में से 6 माइनस किए 1। हमारे पास आंसर आया है 12। उसको हमने इनवर्ड में लिखा है TWELVE 12। Now see the question 2, 678 minus 285। यहाँ पे बिग वैल्यू बड़ी वैल्यू है 678, उसको हमने ऊपर लिखा, उसके नीचे हमने छोटी वैल्यू है 285 उसको लिखा है। अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 5 माइनस किए 3, 7 में से 8 नहीं जा सकता था, 7 छोटा है 8 बड़ा है, इसलिए 7 ने एक अपने बराबर वाले डिजिट यानी कि 6 से लिया तो वैल्यू हमारे पास हो गई 17। 17 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा 9। 6 ने 1 7 को दे दिया था तो वहाँ पर वैल्यू हमारे पास अब है 5। 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास वैल्यू आई 3। आंसर आया 393। नाउ राइट आंसर इन वर्ड 393। Grade 3, I am your maths teacher. Now today we solve exercise 7 topic 1 review and essays. Solve the following using multiplication tables. हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस के टेबल दिए गए हैं। मल्टीप्लिकेशंस में हम क्या करते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व, टेबल पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन 2 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 का टेबल हमें 4 टाइम पढ़ना है। 2 का टेबल जब हम 4 टाइम पढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर आया है 8। यहाँ बोलने खड़े हो गए, मना कर रहे हैं अभी कोई ना बोले, यहाँ पे ना बोलो। आ जाए हो जाएगी, आप अपनी आवाज़ थोड़ी लाउड रखिएगा बस, ठीक है। कर दो स्टार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन 2, 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर हमें 3 का टेबल 7 तक पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। हमारे पास आंसर आया है 21। नाउ सी द क्वेश्चन 3, 5 मल्टीप्लाई 6। 5 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। हमारे पास आंसर आया है 30। Now complete these exercises in your classwork copy.